Yes. So in brief, we'll talk about Dryden, and then we'll talk the background of on dramatic poesy. And there are four people among whom the discussion is there in this dramatic poesy. तो हम बात करेंगे कि who is who, okay, who represents whom, and what are the issues on what the discussion is going on, who says what, and what happens during the final speech. Okay, so this is the agenda for today's talk. In very brief, Dryden's lifespan is 1631 and 1700. Okay, so this is just kind of recapitulation. I believe that you know many of these things. So because he was so prominent figure in of 17th century, so the age the time from 1616 to 1700 is known as the age of Dryden. The same age is known as, or the same time span is also known as the Restoration period. Okay, बहुत ही प्रोमिनेंट थे और इनको माना जाता है कि ही इज फर्स्ट पोइट जिन्होंने पहली बार न्यू क्लासिकल पीरियड में हीरोइक कपलेट को यूज़ किया. ओके, और क्वार्ट्रेन को यूज़ किया. आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज अ हीरोइक कपलेट. इफ देयर इज एनीबडी हु डजंट नो, प्लीज लेट मी नो. फर्स्ट पोइट लॉरिएट भी ये थे. ओके, और इनका बिगनिंग हुई थी फ्रॉम 30 अप्रैल टू 13 अप्रैल 1668 से ये रहे थे जनवरी 1688 तक. ओके, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी हु इज द करेंट पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? Dryden was the first, and who is the current poet laureate of England? Any idea? Okay, he is the person Simon Armitage, who is the current poet laureate of England. Okay, and he has been appointed as poet laureate from 10th May 2019. The another important who succeeded John Dryden as poet laureate? Any idea? किसी ने मैक फ्लेक्नो पढ़ा है? I hope I am audible. Yes. So मैक फ्लेक्नो में फ्लेक्नो तो पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो मैक फ्लेक्नो is an attack on the playwright Thomas Shadwell. Okay, so Thomas Shadwell succeeded John Dryden as a poet laureate. Okay, in 1688 he was appointed as a poet laureate. Okay. और सैमुअल जॉनसन ने बहुत ही अच्छा इनके बारे में लिखा है. वो कहते हैं कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को रिफाइन किया, उसके सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव किया. सेंटिमेंट्स आई मीन हाउ शुड इट बी रिटन, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज. और बहुत से इंग्लिश पोइट्री को और बहुत से इंग्लिश पोइट्स को ट्यून्ड किया. मीन्स he inspired many poets. Okay, many coming poets. He has talked something about on the function of poetry. So on the function of poetry you have already learnt what Plato said, what Aristotle said. We have not discussed Horace because he is not in our syllabus, but this is an important question. Can you answer this question, any of you? And then we'll talk what Dryden says about function of poetry. Plato wanted poetry to instruct. Instruct to whom? You will have a clue to get the answer of this question. किसको इंस्ट्रक्ट करना चाहते थे? The reader. Aristotle to delight, Horace to do both. वो कहते थे the function of poetry is to instruct as well as to delight. और आपको याद होगा लॉन्जाइनस का कहना था कि पोइट्री ट्रांसपोर्ट करती है हमको. ट्रांसपोर्ट कहाँ की तरफ करती है? towards the sublimity, if you can remember. Okay, now what are the ideas of Dryden on the function of poetry? Dryden का मानना है कि final end of poetry is to delight, and not only to delight but to
transport as well as, okay, to transport towards what, transport towards the sublimity. okay, एक और important बात है, he agrees, Dryden agrees with Aristotle when Aristotle says that poetry is the creation of imitation or result of imitation. तो इनका मानना है कि यहाँ of course it imitates, but in addition to imitation it is a work of art. okay. Troilus and Cressida 1679 ट्रेजेडी किसने लिखी है बताइए जरा, एनी ऑफ यू? Look at the date, it's 1679. विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था in 1602 और 1603. ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा किसने लिखा है? in 1679. ये जॉन ड्राइडन का एडेप्टेशन है शेक्सपियर के ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा का, जो 1602 और 1603 में लिखी गई थी. याद रखना है आपको, 1679 इज बाय जॉन ड्राइडन एंड 1602 और 1603 इज बाय शेक्सपियर. ओके, इसके प्रीफेस में जिसका नाम है, प्रीफेस का जो टाइटल है द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन ट्रेजेडी, उसमें उन्होंने कहा है द पोइट इज फ्री टू इमिटेट थिंग्स एज दे आर और आउट टू बी. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. अरिस्टोटल क्या कहते हैं? पोइट क्या इमिटेट करता है? थिंग्स एज दे आर और एज दे थॉट टू बी, और टू इमिटेट व्हाट कुड बी, माइट बी और आउट टू बी. अरिस्टोटल का कहना है कि पोइट्स इमिटेट थिंग्स एज दे आर, लेकिन इनका मानना है कि वो वो ऐसी भी हो सकती जो हम सोच रहे हैं. कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वो कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो चीज़. हमारी थिंकिंग पर भी हम, अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, उसको हम उस आइडिया को इमिटेट करके पोइट्री लिख रहे हैं, तो वो भी पोइट का काम है. उसके लिए फ्री है पोइट इमिटेट करने के लिए. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट कुड बी, माइट बी और आउट टू बी. क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर पोइट के माइंड में कोई भी आइडिया है तो उसको वो इमिटेट कर सकता है. उसके लिए वो इमिटेट करने के लिए फ्री है. ये याद रखना है आपको. ये पोइट के बारे में उन्होंने बोला है द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन ट्रेजेडी, जो कि ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा का प्रीफेस है. और ये ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा का एक और नाम है जो आपके सामने दिख रहा है, ट्रुथ फाउंड टू लेट, which is not another name of Troilus and Cressida by William Shakespeare. Okay. अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, if you can answer. The Tempest, which is a comedy written by, The Tempest, which is a comedy written by, any idea? नो सॉरी. ओके, टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर ने लिखा है वो क्या था? वॉज इट ए कॉमेडी? रोमांस. ओके, कॉमेडी लिखा है जॉन ड्राइडन ने. अगेन इट्स एन एडेप्टेशन. द टेम्पेस्ट अ कॉमेडी इज बाय जॉन ड्राइडन. प्लीज मेक अ नोट. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ ड्रामा ये इन्होंने दिया है इन द ड्रामेटिक पोइजी में ही, जिसको वो बोलते हैं जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. ओके, सो what he meant by just is imitation is not only just but also lively. He does not disagree with Aristotle. Imitation is okay, but वो imitation केवल just नहीं है, वो lively भी होना चाहिए of human nature. It should talk about passions and humor. ये बहुत important point है. Aristotle क्या कहते हैं? What should it talk about? Should it talk about humors also or only passion or both? Aristotle says it should talk about a tragedy should talk about passions of human being. Okay, not the humors. But
पहली बार किसी ने अगर ट्रेजी कॉमेडी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है, लिखा तो है शेक्सपियर ने लिखी है ट्रेजी कॉमेडी, लेकिन पहली बार अगर किसी ने बात की है क्रिटिकल एनालिसिस में तो वो है ड्राइडन। ओके, तो ये पैशन और ह्यूमर्स क्या है, मतलब दोनों को मिला दीजिएगा, ट्रेजिडी और कॉमेडी को। ओके, और जब ट्रेजिडी और कॉमेडी को आप मिला देते हैं तभी वो बनती है लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज नॉट रिलेटेड ओनली टू पैशंस। उसमें केवल पैशंस नहीं होते, उसमें केवल ट्रेजिडी ही नहीं होती, केवल दुख ही नहीं होता है, उसमें ह्यूमर भी होता है, दुख और सुख दोनों होते हैं। दैट्स व्हाई ही कॉल इट अ लाइवली इमेज। I hope you are getting my point. And the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction. तो इसका फंक्शन होना चाहिए कि ये ऑडियंस को डिलाइट भी करे और इंस्ट्रक्ट भी करे। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, ऑडियंस को क्या करे, इट शुड क्रिएट पिटी एंड फियर सो दैट दे कैन नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इंस्ट्रक्शन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पिटी एंड फियर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं डिलाइट भी करे और इंस्ट्रक्शन भी दे मैनकाइंड को कि क्या करना चाहिए इंसान को आगे। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ अगर हम बैकग्राउंड की बात करें ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की, तो पीपल से, आई मीन इट्स नॉट श्योर दैट इट शुड बी रिटन इन 1666। उसके पीछे रीजन है 1666 में ही क्यों लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रामेटिक पोएजी है, ये शुरुआत में जो बात करते हैं वो बात करते हैं इंग्लिश और डच के बीच में जो नेवल फ्लीट चल रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका नेवल फ्लीट का, ठीक है, सॉरी नेवल बैटल का। ठीक है, तो इन्होंने एक 1667 में इनका एक वर्क है, हिस्ट्री पोएम है, जिसका नाम है अनस मिराबिलस। अनस मिराबिलस, क्या मीनिंग है अनस मिराबिलस का? कोई एनीबडी? अनस मिराबिलस, एनी आइडिया? इसका मतलब होता है कोई भी जो बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है या ऑस्पिशियस ईयर है कोई भी। ठीक है, तो क्योंकि उस वॉर में जीत हुई थी इंग्लिश की ओवर डच फ्लीट्स। ओके, तो अनस मिराबिलिस में इन्होंने इस वॉर को का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसको सेलिब्रेट किया है, यू नो, द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। किस पोएम में? अनस मिराबिलिस, जो कि 1667 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन इस वजह से है कि कुछ लोग कहते हैं कि अनस मिराबिलस से पहले ये लिखी गई है, तो उन लोगों का मानना है 1666 में लिखी गई है। अदर्स है कि पहले उन्होंने इस पोएम को लिखा है, किस पोएम को? अनस मिराबिलस, उसके बाद में उन्होंने इसको लिखा होगा। ठीक है, सो देयर इज सम कन्फ्यूजन। सो लेकिन ये पब्लिश्ड हुई है 1668 में अनस मिराबिलस के बाद में। ओके, ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनस मिराबिलिस जो एक पोएम है, वैसे हम जब पोएम का नाम लिखते हैं, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का नाम लिखते हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में ये कभी कभी आ जाता है, अनस मिराबिलिस का ए कैपिटल नहीं है, एम कैपिटल नहीं है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये आइडिया इनको कहाँ से आया। एक्चुअली फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएजी में कुछ लगभग इसी टाइप की बात की थी, ड्रामा के बारे में, पोएट्री के बारे में। उसी आइडिया को ये आगे लेकर के गए हैं और डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा गया था 1580 में। ठीक है, तो इनका पर्पज क्या था, दो नीचे लिखे हुए हैं, इफ यू लुक एट द लास्ट 2 पॉइंट्स हियर, ही सेज टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री। एक तो ये पॉइंट है, कंपेरेबल टू द एपिक, तो उन्होंने एपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ड्रामा को। नंबर 2, ही सेज टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ आवर इंग्लिश राइटर्स फ्रॉम द सेंसर ऑफ दोज हु अनजस्टली प्रेफर द फ्रेंच। तो ड्राइडन के टाइम पे लोग फ्रेंच प्ले राइट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। ये खुद ही एक ड्रामेटिस्ट थे, बट
people were not paying attention too much. He did not have much readership at that point of time. ठीक है, तो इन्होंने ये he tried to prove कि English writers are better than those of French, right? अब यहाँ पे हमको एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है, ओके मेरे माइंड में जैसे ही आता है हम उसकी बात करते हैं फिर। तो ये हमने बात कर ली है। ये शुरुआत होती है, एक्चुअली 4 लोग होते हैं, देयर आर 4 जेंटलमैन। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है ड्रामेटिक पोएट्री की? देयर आर 4 जेंटलमैन, दे आर इन अ बार्ज। ठीक है, दे आर इन अ बार्ज, और वो क्या करने जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व द नेवल बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड द डच फ्लीट्स। ठीक है, वहाँ पर वो बात करने लग जाते हैं, और वो कहाँ पर है? रिवर टेम्स, ये याद रखना है। किस रिवर पर है? टेम्स रिवर। ओके, वहाँ पर वो बात करने लग जाते हैं, पोइट्री की बात करने लगे। शुरुआत पोइट्री और राइम से करते हैं। ठीक है, और वो एक यहाँ पर लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जिस बार्ज में वो चारों लोग बैठे थे वो किसने प्रोवाइड की थी? इट वॉज प्रोवाइडेड बाई अ सर्वेंट ऑफ लिसिडियस। लिसिडियस इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द 4 जेंटलमैन who had taken refuge on a barge। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 4 लोग हैं इसमें, जो चारों लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रिवर टेम्स पे जाते हैं, और वहाँ पर क्या करने जाते हैं? इंग्लिश और डच फ्लीट्स के बीच में जो नेवल बैटल चल रहा था। नेवल बैटल तो आप समझ सकते हैं, नेवल इज रिलेटेड टू नेवी, राइट? तो वो ऑब्जर्व करने जाते हैं, लेकिन इस ऐसे में आपको बीच में मिलेगा कि देयर इज अ साइलेंस, एंड यू नो it gives a kind of feeling that English have defeated the Dutch and they are celebrating। लेकिन कोई भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने डिफीट कर दिया है कि नहीं कर दिया, बट देयर आर सम क्लूज। ओके, तो वो जब वो मतलब सेलिब्रेशन हो रहा होता है, उसी टाइम पे वो डिस्कशन करने लग जाते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं? पोइट्री और राइम के बारे में। ठीक है, कौन सी रिवर पे गए थे? रिवर टेम्स। बैटल किसके बीच में था? इंग्लिश एंड द डच फ्लीट्स। ठीक है, और बार्ज किसने प्रोवाइड की? सर्वेंट ऑफ लिसिडियस। नाउ वो कौन से 4 जेंटलमैन हैं? पहला है क्राइट्स। क्राइट्स का मीनिंग होता है टू जज, और यू नो ही कैन बी अ क्रिटिक ऑफ समथिंग, राइट? अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड मीनिंग। ओके, क्राइट्स रिप्रेजेंट करते हैं सर रॉबर्ट हॉवर्ड को, जो कि ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ थे। यूजिनस का मतलब है वेलबोर्न, और ये चार्ल्स सैकविल को रिप्रेजेंट करते हैं। लिसिडियस सर चार्ल्स सेडले को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों ही लोग एक्चुअली में रेस्टोरेशन क्रिटिक थे। कौन कौन? रॉबर्ट हॉवर्ड, चार्ल्स सैकविल एंड चार्ल्स सेडली, and of course Neander who is representing Dryden himself। ठीक है, I repeat it, क्राइट्स, रॉबर्ट हॉवर्ड, ये याद करना पड़ेगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में नियंडर किसको रिप्रेजेंट करता है। और एक बार एग्जाम में आया था कि नियंडर का जो मीनिंग है न्यू मैन, उसको न्यू मैन क्यों कहा जाता है? नियंडर को या ड्राइडन को न्यू मैन क्यों कहा जाता है? एनी आइडिया? क्योंकि ड्राइडन पहले ऐसे क्रिटिक थे या पहले ऐसे प्लेराइट थे जिन्होंने इंग्लिश प्लेराइट्स को क्या बोलेंगे, इंग्लिश प्लेराइट के फेवर में बात की। ठीक है ना, उनके फेवर में बात की और उनकी रेपुटेशन को एस्टेब्लिश करने की बात की। इस वजह से उनको न्यू मैन कहा जाता है। और साथ ही साथ ये पहले ऐसे प्लेराइट थे जिन्होंने कहा कि ट्रेजी कॉमेडी, ओके, उसको एक साथ लिखने में
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले लोग कहते थे कि ट्रेजिडी कॉमेडी साथ में नहीं लिखा जाना चाहिए, ट्रेजिडी अलग होना चाहिए, कॉमेडी अलग होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजिडी लॉफ्टी मैटर्स की बात करती है और कॉमेडी बात करती है बेस मीन थिंग्स की बात करती है। लेकिन उन्होंने दोनों को मिक्सअप किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी हम ड्रामा लिखते हैं, इट शुड टॉक अबाउट पैशंस एज वेल एज ह्यूमर्स of human being, so that it becomes a lively image, not just image, so that it becomes a lively image. Okay? तो ये इसी वजह से इनको न्यू मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक नई आधारशिला रखी इंग्लिश ड्रामा में, इंग्लिश पोइट्री में। तो ये चारों लोग शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करते हैं? आयरनिक एंड विटी कॉन्वर्सेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो डिबेट किस पर होती है? वर्च्यूज ऑफ मॉडर्न वर्सेस एंशियंट राइटर्स, इंग्लिश प्ले राइट्स वर्सेस फ्रेंच राइटर्स, राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स। So these are the issues that have been discussed in the debate among those four people: ancients versus moderns, unities. Should we follow three unities of time, place and action or not? फ्रेंच ड्रामा अच्छा है या इंग्लिश ड्रामा अच्छा है? शुड ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बी सेपरेटेड, और उनको ट्रेजी कॉमेडी के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए? विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट, राइम और ब्लैंक वर्स इन अ ड्रामा? ओके, सो दीज 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। उसमें एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, विच वन इज नॉट द इश्यू विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन ड्राइडेंस ड्रामेटिक पोएट्री। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन किसको फेवर करता है, कौन किसकी बात करता है। तो क्राइट्स बात करता है एंशियंट्स की, वो बात करता है ब्लैंक वर्स की, और फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश प्ले राइट्स की। आई रिपीट इट, क्राइट्स एंशियंट्स की बात करता है, ब्लैंक वर्स की बात करता है, ब्लैंक वर्स को फेवर करता है, ठीक है, और इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच की बात करता है और फ्रेंच को फेवर करता है। यूजिनस मॉडर्न्स की बात करता है, उनको फेवर करता है, और लिसिडियस फ्रेंच ड्रामा को फेवर करता है, लेकिन निएंडर मॉडर्न इंग्लिश प्लेस को इन कॉन्ट्रास्ट टू एंशियंट्स एंड फ्रेंच ड्रामा उनको फेवर करते हैं। एंड हु इज निएंडर? निएंडर इज ड्राइडन हिमसेल्फ। और in contrast to blank verse he favors rhyme। ये यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड्स में नहीं लिखा होगा, यू शुड टेक अ नोट, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि औरंगजेब किसने लिखा है? एनी आइडिया? आई होप आई एम ऑडिबल। औरंगजेब किसने लिखा है? आवाज आ रही है आपको? हेलो।